Assalamu alaikum dear students. I am your course instructor Ms. Ikra Iqbal from the Division of Science and Technology. And the topic that you are going to learn today is project procurement management. So while starting this topic, the very first thing that should have to come into your mind is what is procurement. Procurement कहते किसे? First you have to learn this, and after that you will learn what is procurement management. As you all people know that you are learning IT project management, and you all knew that project is basically the combination of several different actions or tasks. Project is not only the task that has to be code. The project is not only the task that has to be deal with quality. The project is not only the task that has to be deal with requirements or testing. So whenever you are going to talk about the project, you are going to talk about the whole parameters of project. As you have learned in previous many lectures, you are learning that we have discussed about project integration management. We have discussed about project time management. We have discussed about project cost management. We have discussed about project scope management. So all of the things that we have learned so far came under the umbrella of project IT project management. And uh, when you are coining a term, the term is project, but we are basically getting narrowed on the project is about information technology or IT based projects. So when it comes to IT based projects, so the topic would be the domain would be IT project management. Otherwise, project can be from different several domains and we can talk about them too. Or you can say that we can talk about the projects on general. So heading towards the definition that what is procurement, as it is stated, procurement is the process of finding and agreeing to terms and acquiring goods, services, or work from an external source, often via a tendering or competitive bidding process. प्रोक्योरमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप किसी भी तरह के एक्सटर्नल सोर्स से आप गुड्स ले सकते हैं, आप किसी भी तरह के एक्सटर्नल सोर्स से सर्विसेज हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस। एज यू ऑल पीपल नो, हम लोग जब प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हम लोग अक्सर जब फ्रीलांस करते हैं प्रोजेक्ट्स में तो हम लोग बिड कर रहे होते हैं। तो व्हाट डज दैट बिड मीन्स? दैट मीन्स कि आप उनको एक रेट इनिशियलाइज करके दे रहे होते हैं कि दिस वुड बी द रेट, जिस रेट के अंदर आप अपने क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट करके दे देंगे। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? आप समहाउ द अदर प्रोक्योरमेंट ही कर रहे होते हैं। आप प्रोक्योर करने के लिए, आप चीज़ों को, आप प्रोजेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, आप प्रोजेक्ट को इंकर करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे होते हैं। आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देख रहे होते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस देख रहे होते हैं और उसको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके उसके ऊपर फैसला कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं। So procurement generally involves making buying decisions under conditions of scarcity. Procurement generally हम कब शामिल करते हैं कि जब हम लोगों ने कुछ खरीदना है, कुछ बाय करना है, लेकिन जो हमारी कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी स्कार्स हैं। यही वजह है कि जब भी कभी प्रोक्योरमेंट की बात की जाती है तो हम ज़्यादातर बात करते हैं आउटसोर्सिंग। आगे आपको इसी लेक्चर के अंदर आउटसोर्सिंग के बारे में भी बताया जाएगा कि हम किस तरह से चीज़ों को आउटसोर्स करते हैं और इस्तेमाल करते हैं रादर परचेज करने के। सो प्रोक्योरमेंट के बारे में आई होप आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट? प्रोक्योरमेंट क्या है ये पता चल गया, तो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट क्या चीज़ है? प्रोक्योरमेंट मीन्स एक्वायरिंग गुड्स एंड और सर्विसेज फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। ये आपको पहले ही बता दिया कि प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है कि आपने किसी बाहर के सोर्स से गुड्स और सर्विसेज जो है वो अक्वायर करनी।
अब जब आपने अक्वायर करनी है तो आपने बिडिंग का प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। बिड करते हुए आपको मैंने एग्जांपल दे दी है, जैसे आपके आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स आप बिड करते हैं, तो आप बिड करते हुए ये कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी रह जाए और आप जो है वो लोअर बिड के ऊपर आते हुए आप अपना काम भी कर लें। तो यहाँ पर जब आप बिड करते हैं आप तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कौन से सप्लायर जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ्रूटफुल या प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो फिर आप लोअर कॉस्ट के ऊपर जो है टोटल उसको एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं, प्रोक्योर कर रहे होते हैं। अदर टर्म्स इंक्लूड परचेजिंग एंड आउटसोर्सिंग। वो कह रहा है कि प्रोक्योरमेंट को अगर हम दूसरे टर्म्स के अंदर भी कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, या हम आउटसोर्स कर रहे हैं। अब आउटसोर्स करना या परचेज करना ये ऑलमोस्ट टू डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन एक ही डोमेन के अंदर लाई करती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपने अपने लिए लैपटॉप खरीदा है, आपने अपने लिए मोबाइल खरीदा है, या आपने अगर if you people remember that we used to have internet cafes at our town, cities, or anywhere in our local areas. So we used to purchase the time for using internet. Rather, now at this current stage, we got to have internet at our homes or in our smartphones or digital devices. तो अगर अब हम लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल है हमारे घरों में, हमारे लिविंग एरियाज के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो दैट मीन्स वी हैव परचेज द थिंग। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, जैसे इंटरनेट कैफेज थे, तो हम लोग जाकर इंटरनेट इस्तेमाल किया करते थे फॉर द टाइम बीइंग। तो आप कह सकते हैं कि दैट इज अनदर काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग। आप उसके लिए भी बिडिंग तो नहीं करते थे, लेकिन आप देखते थे कि कहाँ लेस प्राइस के अंदर आपको पर आवर इंटरनेट फैसिलिटी मिल सकती है, और आपके पास वो पर आवर इंटरनेट फैसिलिटी लेस प्राइस के अंदर तो हो, लेकिन इंटरनेट स्पीड जो है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रही हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखते थे और उसके बाद आप कोई ना कोई एक डिसीजन जो है वो ले लिया करते थे। तो आपके पास दो रास्ते हैं प्रोक्योर करने के, या तो आप परचेज करते हैं या फिर आप आउटसोर्स करते हैं। Experts predicted that by the year 2003, the worldwide information technology outsourcing market would grow to over $110 billion. अब ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जितने भी आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग में इंक्रीज कर गए हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो आपको पता है कि आईटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर ऑटोमेटेड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनके अंदर आपको अगर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि सॉफ्टवेयर भी अगर आपको आउटसोर्स करने पड़े तो आप कर सकते हैं। आपको स्टोरेज आउटसोर्स करनी पड़े आप कर सकते हैं। आप अगर एग्जांपल ले लें आप अपने ये क्लाउड की, तो हम अक्सर ये क्लाउड की एप्लीकेशंस में पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर या सर्विस, और मतलब आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हम आर्किटेक्चर एज अ सर्विस, हम अपनी चीज़ बनाने के बजाय हम क्या कर रहे होते हैं, क्लाउड पे पड़ी हुई चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे होते हैं आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर। और अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि आपके पास आपके डेस्कटॉप के ऊपर, आपके पीसी के ऊपर आपके पास सारी स्टोरेज अवेलेबल नहीं होती, बल्कि आपने क्या किया होता है, आपने अपनी स्टोरेज को भी एक किस्म का आउटसोर्स किया होता है, और आप उन रिसोर्सेज के ज़रिए अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने पीसी के ऊपर अपने जो है वो सारा डेटा या जो अपने सॉफ्टवेयर हैं उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। So this is that kind of thing. So that in IT projects, outsourcing is increasing exponentially. US federal government spending on IT outsourcing is projected to increase from $6.6 billion in 2002 to nearly $15 billion by 2007 due to an emphasis on e-government, homeland security, and the shortage of IT workers in government. सो अब ये उन्होंने यूएस की भी एक एग्जांपल दे दी है कि 2002 में अगर उनकी आउटसोर्सिंग की जो प्राइसिंग थी वो 6.6 मिलियन थी, तो 2007 लाइक विद इन 5 इयर्स ये प्राइस जो है ये डबल से भी ज़्यादा हो गई और $15 बिलियन पे आउटसोर्सिंग के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पहुंच गए। और उसकी वजह क्या रही? ई गवर्नमेंट जो थी वो आ गई, होमलैंड सिक्योरिटी के ऊपर काम होने लग गया, और आईटी वर्कर्स जो गवर्नमेंट के अंदर है वो शॉर्ट होने लग गए। और जब आपके आईटी वर्कर्स भी शॉर्ट होने लग जाते हैं तो समहाउ दी अदर आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी आउटसोर्स करते हैं, आप दूसरी जगह से एम्प्लॉयज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए।
अब आगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है व्हाई आउटसोर्स, आपने आउटसोर्स करना क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट दो तरीके से की जा सकती है, या तो आप परचेज कर लेते हैं गुड्स और सर्विसेज को, या आप आउटसोर्स कर लेते हैं। परचेज का प्रोसीजर तो इजी है, आप सबको पता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी और आपने उसको खरीदने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल कर लिया प्रोजेक्ट के लिए। आउटसोर्स का रीज़न क्या है? पहला रीज़न जो यहाँ पर वो स्टेट कर रहा है वो ये है कि टू रिड्यूस बोथ फिक्स एंड रिकरेंट कॉस्ट। आप चाहते हैं कि आपकी जो रिकरेंट कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। अब रिकरेंट कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट क्या है? दिस इज जस्ट लाइक अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपने अपने जो भी आपकी कोई एक प्रोजेक्ट करने के लिए आपकी कोई एक प्लेस है, आप उस प्लेस को रेंटेड करते हो, आप कोई एक जगह खरीदते हो अपने उस काम को करने के लिए, तो अब आपको पता है कि आपने पर मंथ उस जगह के लिए पे करना है। सो इफ यू आर गोइंग टू पे रेंट एवरी मंथ, पहले तो ये चीज़ कि आपने उसके लिए पे करना है मंथली, आपकी उसके लिए आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो हो गई है आपकी फिक्स कॉस्ट। अब ये क्योंकि आपको पर मंथ करते ही जाना है, तो ना दिस इज समथिंग रेकरेंट कॉस्ट। आपने एक चीज़ को, और ये दोनों की दोनों ही ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। अगर आपको याद हो हम लोगों ने कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ा था, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, तो उसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ी। डायरेक्ट कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि जो प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्ट लग रही होती है, और जो इनडायरेक्ट होती है वो प्रोजेक्ट को करते हुए आपको बियर करनी पड़ रही होती है बाकी रिसोर्सेज की वजह से। सो ये दोनों ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं कहूँ कि ये एक दफ़ा की कॉस्ट है तो ये फिक्स कॉस्ट है, और अगर ये फिक्स कॉस्ट रिपीटेडली चलती जा रही है तो ये रेकरेंट कॉस्ट है। तो आउटसोर्स करने से क्या होता है, हमारी रेकरेंट कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो है वो भी बच जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आपने उस चीज़ को आउटसोर्स कर दिया, तो अब आपको उसके लिए पे करने की या रिपीटेडली पे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आउटसोर्स की वजह से आप क्या कर सकते हैं, उसका एक फिक्स्ड आपका एक जो है अमाउंट दे सकते हैं उसके लिए। टू अलाउ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन इट्स कोर बिजनेस। अब आउटसोर्स कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका क्लाइंट बिजनेस है, मतलब जो जिसके लिए आप ये आउटसोर्स कर रहे हैं, आपका वो जो क्लाइंट है वो अपने कोर काम के ऊपर, अपने मेन टास्क के ऊपर जो है फोकस रख सकेगा, रादर के वो बाकी की एक्स्ट्रा करिकुलर जो जॉब्स हैं उसके अंदर वो कहीं अपने आप को इंडल्ज करे। मतलब कि यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर designated or desired task rather to waste time on other different resources. पॉइंट नंबर 3, टू एक्सेस स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज। ये भी एक फ़ायदा हो जाता है आउटसोर्सिंग से, क्योंकि आपको एम्प्लॉयज़ डिफरेंट जगह के मिल जाते हैं, एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो आपको स्किल्स और टेक्नोलॉजीज़ के अंदर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। डिफरेंट लोगों का एक अमेलगमेशन होता है, मिक्सचर होता है, आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी होंगे, फिर आपने जब अगर आउटसोर्स किया है एम्प्लॉय को तो वो भी होंगे, और वो डिफरेंट स्किल सेट के साथ होंगे, तो वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी और डिफरेंट एक्सेस स्किल्स के लोगों को एक्सेस करने का मौका भी मिल जाता है। पॉइंट नंबर 4 है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल हो जाता है आपका काम, रिजिडिटी नहीं रह जाती है। आउटसोर्स किया हुआ है तो जाहिर सी बात है आप उसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किस तरह से बढ़ जाती है? अकाउंटेबल होना किसी चीज़ का आंसरेबल होना होता है। आपने अक्सर सुना होगा ये जुमला या फ्रेज, यू आर अकाउंटेबल फॉर योर एक्शन। आप अपने अवामिल के लिए हमेशा जवाबदेह होते हैं। तो अगर आपने आउटसोर्स किया है तो ये अकाउंटेबिलिटी किस तरह से बढ़ा देता है कि जिधर से आपने चीज़ें आउटसोर्स की हैं तो वो लोग भी जो हैं वो आंसरेबल हैं अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए जो उन्होंने आपको दिए हुए हैं। आपके वो प्रोडक्ट्स या आपके वो प्लेटफॉर्म्स या आपके वो एम्प्लॉयज़ जो उन्होंने आपको दिए हुए हैं, वो उन सब चीज़ों के लिए अकाउंटेबल है। तो एक तरह की आपको एक काउंटर कंफर्मेशन हो जाती है कि जनाब आपकी जो आउटसोर्सिंग वाली चीज़ है वो अब आपको उसका पे बैक करके जाएगी, आपको उसके लिए आंसर मिल जाएगा।